Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 3 about human body, which is a unique machine. Okay, let's start the chapter. See, human body is a unique machine made up of bones and muscle. It is a wonderful nature-made machine. It can efficiently perform many functions at a time. And to carry out these functions, many organs of the human body work together as a member of our system. So let us know about unique machine having the form of human body. So students, human body एक unique machine है जो कि bones and muscle से बनी होती है. एक wonderful nature made machine है. That means it is made naturally. It is not a man made machine. Okay. It can efficiently perform many functions. एक human body एक particular time पे काफ़ी सारे functions को perform करती है and इन सभी functions को carry out करने के लिए human body के different organs group में together work करते हैं as a member of a particular system. So in this chapter, we are going to learn about the different body systems which work combinedly in the human body. And first of all, we have the nervous system. Our nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. सबसे पहले nervous system की बात करें तो nervous system brain, spinal cord and nerves से मिलकर बना होता है. Our sense organs receive information from our sound and passing it to the spinal cord or brain. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड इसको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक नर्व्स के थ्रू भेजा जाता है. ऑल द एक्टिविटीज, हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज को हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. इनफैक्ट ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम ओनली. द ब्रेन कीप द हार्ट बीटिंग. ब्रेन हमारे हार्ट को ऑल टाइम बीट करवाता है. लंग्स ब्रीथ करते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेन ओनली. It enables the body to move. Nervous system के through only we are able to move. It helps in speaking, thinking, learning and remembering. Now the actions that are controlled by the spinal cord and are sudden are called reflex action. अब कुछ ऐसे actions होते हैं जिनको spinal cord control करता है and वो sudden actions होते हैं, immediate actions होते हैं. Such actions are called reflex action and are being controlled by the spinal cord. Example, blinking of eyes, watering of mouth at the sight or smell of food. These are the examples of reflex action. You can see in this picture, they have shown you the nervous system. This is the brain. This is spinal cord. Okay. And there are also some nerves which pass throughout our body and they are also the part of our nervous system only. Any cell of any part of the body when damaged is replaced by a new cell but does not happen in case of the neuron. See students, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है तो वो एक न्यू सेल के थ्रू रिप्लेस होता है, लेकिन न्यूरॉन के केस में ऐसा नहीं हो सकता. When we have skeletal system, the shape of our body is a result of framework of our bone. जो हमारी बॉडी की शेप है वो किसकी वजह से है? एक्चुअल में हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एक बोन के फ्रेमवर्क से बना है. दैट इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन. एंड यही फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेफ रखता है लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन ऑल्सो. दिस फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है. ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन्स का बना है विच आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड ऑफ शेप्स. डिफरेंट बोन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट बोन्स जो हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट होती हैं इन डिफरेंट वेज. द स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज होल्डिंग द जॉइंट्स टुगेदर आर कॉल्ड लिगामेंट्स. ओके, जितनी भी हमारी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज है जो हमारे जॉइंट्स को एक साथ ही होल्ड करती है उनको लिगामेंट्स कहा जाता है. एंड बोन्स की स्टडी को भी कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. देन वी हैव मस्कुलर सिस्टम ऑल्सो, द मेजर पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी का मेजर पार्ट बना है मसल से. हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स मूव करते हैं ड्यू टू दीज मसल्स ओनली. एंड अबाउट 650 मसल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाई इन अवर बॉडी. ठीक है, अराउंड 650 मसल्स डिफरेंट टाइप्स की हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. मसल्स का कंस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन ही है जो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, लाइक वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग एक्सेट्रा. दीज ऑल एक्शंस बिकम पॉसिबल ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. द मसल हेल्प अस टू, मसल्स हमें स्माइल करने में, टू च्यू अवर फूड, टू पुश द फूड इनटू द स्टमक, and also the heartbeat is being produced due to the working of the muscles only. Next we have what? Muscles work in pairs. Muscles हमेशा pairs में work करती हैं. एक अच्छा example जो है muscles का which work together, it can be seen in the human arm. Okay, the muscle at the front of the arm. जो आर्म में हमारी जो फ्रंट में मसल होती है उसे हम बाइसेप मसल कहते हैं, एंड वो मसल जो आर्म के बैक में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप मसल. ओके,
When the bicep muscle is contract, जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब ट्राइसेप मसल रिलैक्स हो जाती है, एंड जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी एट दैट टाइम द बाइसेप मसल विल बी गेट रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप मसल बेंड्स द आर्म. जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब हमारी आर्म बेंड हो जाती है, एंड जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब हमारी आर्म स्ट्रेट होती है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है हमारी थ्रू आउट द बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना. ब्लड फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल तक, एंड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज को कैरी करता है. द सेल्स कैन नॉट लिव विदाउट अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश फूड. हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो एक फ्रेश फूड की कॉन्टिन्यूस सप्लाई के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, एंड इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है डिजीज फाइटिंग सब्सटेंसेस को कैरी करना टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी सो दैट इट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट द बॉडी. नेक्स्ट वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. So the changing of food into a simple form is called digestion. जो food आप खाते हो उसको एक simplest form में change करने वाला process is called digestion process. Okay, the food we eat, जो खाना हम खाते हैं वो saliva के साथ mix हो जाता है. Saliva क्या है? एक juice जो हमारे stomach में food के साथ ही चला जाता है, and it is secreted by a muscular organ present in our mouth that is called tongue. It remains in the stomach. अब इसके बाद जब खाना stomach में जाता है वो वहाँ पे about 4 hours तक same condition में रहता है. फिर फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बाद स्टमक से फूड हमारा नेक्स्ट ऑर्गन में मूव करता है दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दीज ऑर्गन, अब इन सभी ऑर्गन्स में फूड को एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किया जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो सिंपलर फॉर्म होती है फूड की उसको बॉडी सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब एंड यूज किया जाता है, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, एंड फाइनली वी थ्रू आउट ऑफ इट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. एंड उसके बाद जो फाइनल अनडाइजेस्टेड फूड है, सॉलिड वेस्ट है, उसको हम अपनी बॉडी से एनस के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. दिस इज होल डाइजेस्टिव सिस्टम विच among which the whole digestion process takes place. Next we have what the breathing system. Air enters our body through our nose. हमारी बॉडी में एयर नोज के थ्रू एंटर करती है, एंड देर आर सम हेयर्स इन द नोज. हमारे नोज में कुछ हेयर होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स को जो कि एयर में प्रेजेंट है उन्हें ट्रैप कर लेते हैं. द ऑक्सीजन भी ब्रीथ, इसके बाद वो ऑक्सीजन गैस जिसको हम ब्रीथ इन करते हैं वो उस फूड को जो कि हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया है उसको बर्न करती है, ओके, एंड देन प्रोवाइड अस एनर्जी. एंड द एयर वी ब्रीथ आउट, एंड वो एयर जिसको आप बाहर की तरफ ब्रीथ आउट करते हो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड जर्म्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, दिस इज ओनली व्हाट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन process. Then next we have the reproductive system. The organ of this system help to produce baby. Reproductive system के जो organs होते हैं वो help करते हैं to produce the new individuals of their own kind. All living beings, सभी living beings multiply कर सकते हैं खुद को in the number, and then they can reproduce their own kind. And this is what is called reproduction. Means what? कि एक ऐसा process जहाँ पे सभी living beings खुद को अपने number को multiply करते हैं, अपनी species को continue कर सकते हैं. Okay, this process is what is called reproduction. And reproduction process के लिए जितने भी organs involved होते हैं, they all together constitute the reproductive system. All living beings do not reproduce in the same way. सभी living beings same day में reproduce नहीं करते हैं. Some animals, कुछ ऐसे animals हैं जो अपने young ones को birth देते हैं like cat, dog, horse, cow, etc. And कुछ animals eggs lay करते हैं. इन्हीं eggs के through इनके babies hatch होते हैं and the young ones come out. And the young ones resemble their parents. And the young ones eggs के थ्रू आते हैं, they resemble like their parents only. The process of young ones coming out of egg is called hatching. And eggs के थ्रू जो young ones बाहर आते हैं इस process को hatching process कहा जाता है. Then next we have excretory system. Excretory system removes the waste material from the body. Excretory system का काम है body से waste material को remove करना. The two kidneys, जो 2 kidneys हमारी body में present होती है, ये यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं. एंड द स्किन का काम भी क्या है, एक्सेस वाटर एंड जो सॉल्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको स्वेट की फॉर्म में रिमूव करना. अ डिजीज नोन एज लेप्रोसी इज अ स्किन डिजीज. एक डिजीज है जिसका नेम है लेप्रोसी, ये एक स्किन डिजीज होती है. एंड जो पेशेंट है वो क्या कर देता है, लेप्रोसी डिजीज में उसका जो सेंस ऑफ टच है वो लूज हो जाता है, एंड देन द पर्सन कैन नॉट फील एनी पेन और एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. Next, we are going to talk about sense organs. So, the organs which make us aware of our surroundings through our sense are called sense organs. तो सारे organs जो हमें हमारी surrounding के बारे में information provide करते हैं and हमारे sense को develop करते हैं, that is called sense organs.
Okay, they are in fact like windows of the brain to the outer world. Sense organs एक window of the brain की तरह काम करते हैं for the outside world. Some important sense organ of our body are eyes, ear, nose, tongue and skin. Okay, let's discuss about all these sense organ one by one. First of all, we have to discuss about eyes. So eyes help us in seeing the objects around us. Eyes help करती हैं अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए. हमारी बॉडी में सेवरल फीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि आईब्रोज प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज. स्वेट को आईज में अंदर एंटर करने से आईब्रोज आर देयर. फिर उसके बाद आईलैशेस हैं जो आईज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डर्ट. आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम इंजरी. नाउ केयर ऑफ आईज, हमें आईज की कैसे केयर करनी चाहिए. सो आईज काफी डेलिकेट ऑर्गन्स है एंड देयरफॉर दे नीड स्पेशल केयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉश एंड क्लीन योर आईज रेगुलरली विद कोल्ड वाटर एंड नेवर वर्क इन डिम लाइट. हमें अपनी आईज को वॉश एंड क्लीन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. किसके थ्रू? कोल्ड वाटर के थ्रू. एंड कभी भी डिम लाइट में वर्क नहीं करना चाहिए. देन डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन और इन अ मूविंग व्हीकल. कभी भी लेट कर या आप मूविंग व्हीकल में हो तो कभी भी आपको रीडिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेन ऑन योर आईज. नाउ नेक्स्ट सेंस ऑर्गन विच वी हैव इज ईयर. ओके, ईयर्स हेल्प अस इन हेयरिंग. ओके, नाउ द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. हमारे ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर. आउटर ईयर का काम है साउंड वेव्स को कैच करना एंड उन वेव्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना टू द इनर ईयर. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर ईयर्स. नंबर 1, ईयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ड ब्लोज. हार्ड ब्लोज से ईयर को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. लाउड नॉइजेस को हमें अवॉइड करना है एंड वी शुड नेवर क्लीन आवर ईयर्स विद अ काइंड ऑफ मैच स्टिक और हेयर पिन. ओके, always use earbuds for cleaning your ears. Next we have nose. So it helps us to smell a variety of objects. Nose के through हम variety of objects को smell कर सकते हैं, from the flowers to rotten eggs. The sense of smell and the sense of taste are interlinked. Okay, sense of smell and sense of taste जो है interlinked होते हैं. जो nose के upper part की nerve endings होती हैं वो sensitive होती हैं to the response of smell. Now, how should we take care of nose? Number 1, keep your nose just clean by blowing your nose gently. आपको अपनी nose को clean रखना चाहिए, उसे gently blow करके. and nasal drops का use करना चाहिए या फिर आपको steam inhale करनी चाहिए to clean a blocked nose. Then next we have tongue. Tongue help us in tasting things. Tongue हमें help करती है एक तो चीज़ों को taste करने में and also to speak. द सर्फेस ऑफ द टंग. टंग के सरफेस पे काफ़ी सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं एंड ये टेस्ट बर्ड्स में नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाती हैं एंड हेल्प अस टू टेस्ट द वेरियस फूड आइटम्स. डिफरेंट रीजन्स ऑफ द टंग. टंग के डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं, लाइक स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर. नाउ केयर ऑफ टंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज यूज अ प्रॉपर टंग क्लीनर टू क्लीन योर टंग. हमेशा एक प्रॉपर टंग क्लीनर का आपको यूज करना है अपने टंग को क्लीन करने के लिए. एंड ऑलवेज च्यू योर फूड स्लोली. हमेशा अपने फूड को स्लोली च्यू करना चाहिए. सी दैट योर टंग डज नॉट कम बिटवीन योर टीथ, अदरवाइज यू विल कट इट. एंड हमेशा इस चीज़ पर इंश्योर रखना है कि हमारी जो टंग है वो हमारे टीथ के बीच में ना आए, अदरवाइज जब हम खाने को च्यू करते हैं वी माइट कट इट. देन द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन विच वी हैव इज स्किन. द स्किन फॉर्म्स अ कवरिंग फॉर द एंटायर सरफेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, स्किन क्या है? स्किन हमारे पूरी बॉडी सरफेस पे एक कवरिंग की तरह है एंड हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. देयर आर टेनी नर्व एंडिंग्स इन अवर स्किन. हमारे स्किन में छोटी छोटी सी नर्व एंडिंग्स होती हैं एंड ये नर्व एंडिंग्स हेल्प करती हैं टू फील द थिंग्स. ओके, दे हेल्प अस टू डिटेक्ट कोल्ड, हीट एंड पेन. नाउ केयर ऑफ स्किन. सो टेक अ बेथ रेगुलरली. यूज अ गुड सोप टू रिमूव डस्ट एंड स्वेट फ्रॉम द स्किन. आपको रेगुलर बेसिस पे क्या बेथ लेना चाहिए एंड एक अच्छे सोप का हमें यूज करना चाहिए अपने स्किन से डस्ट एंड स्वेट को रिमूव करने के लिए. एंड देन इफ देयर इज एनी कट और स्केच ऑन द स्किन, ट्रीटेड विद एन एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ जर्म्स. एंड अगर किसी भी तरीके का कट या स्क्रैच हमारी स्किन पे आता है तो हमें उसे एंटीसेप्टिक से ट्रीट करना चाहिए सो दैट वहाँ पे जर्म्स की ग्रोथ ना हो. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. This was all about the different organ system which are there in our body and help us to survive. And also we had a great and a detailed description of the different sense organ which help us to sense the world around us. That's enough for today. We'll meet you in the next class and then take care and thanks to everyone.